Hello dear students, welcome back to our channel. So before starting with our today's topic, let me remind you once again, अगर आपने अब तक हमारी ज्ञान लैब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please click on the subscribe button. And if you like our videos, then do not forget to share it. Thank you. Let's start with our today's topic. Okay dear students, so let's start with our today's topic. हमने अपने लास्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया था, इन विच वी स्टडीड अबाउट ovaries. Okay, what is an ovary, how does its maturation take place, how does its production take place, everything we studied in detail. So now today we are going to study about the next part of a female reproductive system, and that is oviduct. Okay, first let us understand what is an oviduct. If you remember the structure of an ovary, so the structure of a female reproductive system, it would look somewhat like this. Okay, this is basically the structure of a female reproductive system. These are your ovaries. This is the tube which connects the ovaries to the uterus. This is the uterus, this is the cervix, and this is the vagina, the part which leads downwards. Okay, so today we studied about ovaries in our last lecture. Now today we are going to understand in detail about oviducts and many more other parts. Okay, we had studied that there are 7 different parts in a female reproductive system which are very much essential for successful fertilization to take place. Okay, so today we are going to understand about oviducts. What is an oviduct? It is basically a tube-like structure, and that is why another name for oviduct is fallopian tube. Okay, and another name for fallopian tube is uterine tube. क्यों बोलते हैं इसको uterine tube? Because it is connected to the uterus, which is nothing but this part, the womb of the mother, जहाँ पर embryo implant होता है. Okay, so let's read the introduction of the oviduct. These are a pair of muscular ducts lying horizontally over the peritoneal cavity. क्या बोला गया है हमको? As you can see, the oviducts, 2 oviducts होते हैं, one on left, one on right. So these are the ducts which are lying horizontally. ऊपर की तरफ आपका abdominal region है और peritoneal cavity यानी कि आपके स्टमक के नीचे horizontal position पे, vertical position पे नहीं, horizontal position पे ये oviducts arranged हैं below the peritoneal cavity. Okay, the proximal part of the tube lies close to the ovary. ट्यूब का जो सबसे क्लोज पार्ट है वो किसके नज़दीक है? ओवरी के पास है. और जो इसका ट्यूब का दूर वाला पार्ट है, द डिस्टल एंड, प्रॉक्सिमल मीन्स नियर एंड डिस्टल मीन्स फार. सो जो नज़दीक वाला एंड है दैट इज कनेक्टेड टू द ओवरी, इट लाइज क्लोज टू द ओवरी, एंड द डिस्टल एंड लाइज क्लोज टू द यूटेरस. और यू कैन से कि ये जो डिस्टल एंड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओपनिंग हो रही है. सो द डिस्टल एंड ओपन्स इनटू द यूटेरस एज इट इज गिवन इन द theory. Okay, all right, see, the proximal part of the tube lies close to the ovary, and the distal part opens into the uterus. Each tube is 10 to 12 centimeter. If you measure the dimension of this tube, then it is 10 to 12 centimeter in length. It is internally lined by ciliated epithelium. So these are a type of cells. हमने हमारी ओवरीज में देखा था कि वो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स से लाइंड होती है. यहाँ पर ये ट्यूब, मैं ट्यूब की बात कर रही हूँ, ये ओविडक्ट कौन से सेल्स से इंटरनली लाइंड होती है? सीलिएटेड एपिथेलियम. सीलिएटेड एपिथेलियम मीन्स सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर. और हेयर लाइक स्ट्रक्चर का क्या मूवमेंट होता है बॉडी में? इट हेल्प्स इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या आप बोल सकते हैं वो किसी भी चीज को आगे की तरफ पुश करने का काम करता है. तो हमको आगे पता चलेगा कि ये सीलिया का क्या काम है और क्यों ओविडक्ट में सीलिएटेड एपिथेलियम है. सी, बायोलॉजी में छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड. ओके, ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम था क्योंकि जर्मिनल एपिथेलियम ही आगे जाके जर्म सेल्स बनाते हैं, एंड जर्म सेल्स आर नथिंग बट योर सेक्स सेल्स, दैट इज स्पर्म एंड ओव्यूल्स. ओके, वैसे ही ओविडक्ट में सीलिएटेड एपिथेलियम है. सीलिएटेड एपिथेलियम यानी कि सीलिया जैसे सेल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर? जब वो हेयर जैसे मूवमेंट करते हैं, व्हेन दे मूव बैक एंड फॉरवर्ड, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द पर्टिकुलर cell, or it pushes the particular cell in backward or forward direction. Okay,
It is internally lined by ciliated epithelium. It can be divided into 3 regions. Your oviduct, see, यूटेरस वॉल से स्टार्ट हो रहा है, ओवरी तक पहुंच रहा है, ये इतना सा डक्ट जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. एंड विच आर दीज 3 रीजन्स? फर्स्ट वन इज इन्फंडिबुलम, द सेकेंड वन इज ampulla, and the third one is isthmus. Let's discuss about it. What are these? Okay, so the first one is what? Infundibulum. What is infundibulum? It is the proximal funnel like part. This funnel like part, ये आपका ओविडक्ट का जो ये फनल जैसा पार्ट है, जो ऐसे ऐसे करके ओवरी को पकड़ के रखता है, दिस फनल लाइक पार्ट इज नोन एज इन्फंडिबुलम विथ एन ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टियम. यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं. आपने 11th स्टैंडर्ड में कॉकरोच के बारे में अगर पढ़ा होगा, तो जब कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ऑस्टियम के बारे में पढ़ा था कि छोटे छोटे ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं, जिनके ऊपर वॉल्व लगा हुआ होता है. सो इस इन्फंडिबुलम में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी सिंपल. ये आपका ओविडक्ट है, ओविडक्ट का ये फनल जैसा जो स्ट्रक्चर है, फनल सीधा ऐसा दिखता है, उल्टा ऐसा दिखता है, तो ये फनल जैसा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पास ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस हैं. ओके, इट लुक्स समवॉट लाइक दिस. दिस इज सपोज योर इन्फंडिबुलम, और ये आगे जाके यूटेरस से कनेक्ट हो जाएगा. तो ये जो इन्फंडिबुलम है, ये ओवरी को पकड़ के रखता है. मतलब ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये आपका इन्फंडिबुलम है, ये फनल जैसा स्ट्रक्चर, और ये उसके फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस हैं, जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए. क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिए. और ये फिम्ब्रिए किसको पकड़ के रख रहा है? ओवरी को पकड़ के रख रहा है. तो ये किसी ना किसी एक ऑस्टियम में ओपनिंग होती है, होल होता है. क्यों होता है वो होल? क्योंकि ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगी? ओवरी प्रोड्यूस करेगी एग सेल्स. क्या प्रोड्यूस करेगी ओवरी? एग सेल्स. तो ओवरी में से जो एग सेल निकलेगा वो इन्फंडिबुलम के अंदर जाएगा, फिर इन्फंडिबुलम से होते हुए वो बाकी के ओविडक्ट को क्रॉस करके फिर यूटेरस के पास जाएगा. सो ओविडक्ट से जो एग सेल निकल रहा है, वो एग सेल इन्फंडिबुलम के अंदर कैसे घुसेगा? विद द हेल्प ऑफ दैट स्मॉल होल, स्मॉल ओपनिंग नोन एज ऑस्टियम. ओके, दिस ऑस्टियम हेल्प्स in taking the ovule inside the infundibulum. Okay, so infundibulum is a proximal funnel like structure which has opening called ostium and which is surrounded by many finger like projections also called as fimbriae. Okay, और इन फिम्ब्रिए में से मैंने आपको पहले ही बोला कि ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो इनमें से सब में ओपनिंग नहीं होगी, किसी एक फिम्ब्रिए में ओपनिंग होगी, ऑस्टियम होगा, जिसमें से ओव्यूल अंदर जाएगा. The cilia and the movement of the fimbriae help in driving the ovulated egg to the ostium. So मैंने यहीं पर आपको फंक्शन बता दिया है कि ciliated epithelium क्यों है ओविडक्ट में, क्योंकि ये जो सीलिया है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर और ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर, ये जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे तो ये ओवरी के पास से एग लेंगे और उस एग को अंदर की तरफ पुश करेंगे, मतलब ओविडक्ट के अंदर पुश करेंगे. यहाँ से समझो ये एग निकल रहा है, ये एग अंदर जाएगा और धीरे धीरे करके वो पूरी ओविडक्ट के थ्रू ट्रैवल करेगा, लेकिन वो आगे तक नहीं जाएगा, वो यहीं पर रुक जाएगा. इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? एम्प्यूला. क्या बोलते हैं? एम्प्यूला. What is the significance of ampulla? Ampulla is basically the site of fertilization. What is ampulla? Site of fertilization. Okay? आपका sperm, मेल का स्पर्म जब कॉप्युलेशन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो मेल का स्पर्म वजाइना से इंसर्ट होकर वो यूटेरस को पार करके आपके ओविडक्ट तक पहुंचता है, और ओविडक्ट तक पहुंचते फाइनली वो एम्प्यूला तक आ जाता है. तो जब यहाँ पर स्पर्म आ जाएगा, मेल स्पर्म, और यहाँ पर हमारा ये मेल स्पर्म पहुंच गया है एम्प्यूला तक, और यहाँ पर हमारा ओव्यूल है, तो यहाँ इन दोनों का फ्यूजन होगा और एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है. ऑलवेज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एम्प्यूला का क्या सिग्निफिकेंस है? इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. अगर एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ओके, प्रॉपर साइट यहीं पर होती है एम्प्यूला में. And what is the reason behind it? It is still under research, it is still under studying, but you have to remember कि fertilization कहाँ पर हो रहा है? एम्प्यूला में. It is a part of oviduct obviously. So it is the middle long straight part of the oviduct. Fertilization of the ovum takes place in this region. Just underline this line कि fertilization कहाँ पर होता है? एम्प्यूला में. Next part of oviduct is isthmus. मैंने आपको last time बताया था डायग्राम में. What is isthmus? This part.
आपका जहां पर ओविडक्ट खत्म हो रहा है और जहां से यूटरस स्टार्ट हो रहा है, वो दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, दैट इज isthmus. It is a distal narrow part of the duct which is opening into the uterus. जहां पर ओविडक्ट खत्म हो रहा है और जहां से यूटरस का ओपनिंग स्टार्ट हो रहा है, उस पार्ट को हम बोलते हैं isthmus और cornua. So make sure that you understand this. Okay. The next part of a female reproductive system is uterus. Now this is also very important organ which you need to understand very carefully. Okay. Let's discuss what is uterus. Okay, can you tell me what is uterus? Yes, it is very commonly known as the womb of a female. Okay, जहाँ पर embryo implant होता है, that part is known as uterus. So it is commonly called as womb, जिसको हम कोख बोलते हैं. So uterus is also known as the womb of a body. It is hollow. It is empty from inside, क्योंकि वहाँ पर एम्ब्रियो अगर रखना है तो वो खाली होना चाहिए. So it is hollow. It is muscular in region, muscular in nature. It is pear shaped organ. Okay, ये यूटरस कैसा दिखाई देता है? It looks like pear shape. So somewhat like this. यहाँ से ये ओविडक्ट्स आए, यहाँ पर आपका ओवरी. This is uterus. Okay. So it looks somewhat pear shaped. Located above and behind the urinary bladder. Location is very important. तो यूटरस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जहाँ आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और पीछे की तरफ. इफ दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, तो इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की तरफ और पीछे पोस्टीरियर साइड में ये प्रेजेंट होगा, डोर्सल साइड में. ओके. It is about 7.5 centimeter long, 5 centimeter broad and 2.5 centimeter thick. Again, dimensions are important. The uterus can be divided into 3 regions. जैसे हमने ओविडक्ट का देखा, वैसे ही यूटरस भी 3 regions में डिवाइड किया गया है. Let us have a look. What are those 3 regions? The first one is fundus. What is the first region? Fundus. It is the upper dome shaped part. Okay. If I draw the structure of the uterus, imagine this is the oviduct. These are the ovaries. Okay, don't judge me on my drawing. Yeah, so this is the uterus. तो यूटरस का ऊपर का जो डोम शेप है, डोम मतलब क्या होता है? ऊपर से जो स्वोलन पार्ट होता है. जैसे फिजिक्स में आप क्रेस्ट और ट्रफ पढ़ते हैं, तो क्रेस्ट कैसे होता है? ऊपर से सेमी सर्कल होता है, उसको हम डोम बोलते हैं. जो मॉस्क वगैरह में होता है ना, मस्जिद वगैरह में या ताजमहल में ऐसे कर्व्ड रूफ होती है, सो दैट कर्व्ड पार्ट इज नोन एज द डोम. सो फंडस क्या है? फंडस इज द अपर डोम शेप्ड पार्ट which is where normally implantation of the embryo takes place. तो implantation of embryo takes place where? At the fundus. आपका यहाँ पर फ्यूजन हुआ, यहाँ पर जाइगोट बना, जाइगोट बनते बनते फिर एम्ब्रियो कहाँ पर आ जाता है? फंडस में आ जाता है, यानी कि यूटरस के अपर पार्ट में. द नेक्स्ट इज द बॉडी, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूटरस. इट इज ब्रॉड पार्ट ऑफ द यूटरस विच ग्रेजुअली टेपर्स डाउनवर्ड्स. टेपर मतलब श्रिंक हो जाना या फिर पॉइंटेड हो जाना. जैसे स्पिंडल फाइबर कैसे बीच में से मोटा होता है, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स ऐसे होते हैं ना, बीच में से थोड़े से ब्रॉड और एंडिंग उनकी पॉइंटेड होती है. सो पॉइंटेड एंडिंग मीन्स टेपरिंग. ओके, सो यूटरस का बॉडी भी कुछ ऐसा ही है, प्योर शेप है. आप प्योर फ्रूट को उल्टा कर दो तो ऊपर ब्रॉड है और नीचे आते आते वो थिन हो जाता है. सो द बॉडी इज ब्रॉड बट इट टेपर्स डाउनवर्ड्स. जैसे नीचे जाओगे वो टेपर होते जाएगा. देन कम्स द सर्विक्स. ओके, और मैंने लास्ट टाइम ही आपको डायग्राम में बताया था, सर्विक्स इज द रीजन, दिस इज द सर्विक्स. सर्विक्स इज द रीजन विच इज प्रेजेंट जस्ट अबव द वजाइना. मतलब सर्विक्स खत्म होते ही वजाइना स्टार्ट हो जाता है. सो इट इज द नैरो नेक. सर्विक्स को आप नेक भी बोल सकते हैं यूटरस की. 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ. इट एक्सटेंड्स इनटू द वजाइना. सर्विक्स कहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है? वजाइना में. मतलब सर्विक्स खत्म, वजाइना स्टार्ट. इट्स पैसेज हैज 2 ओपनिंग्स. सर्विक्स की 2 ओपनिंग होती है. एन इंटरनल ओवेस टुवर्ड्स द बॉडी, मतलब एक ऊपर की तरफ ओपनिंग होगी जो ऊपर की तरफ खुलेगा और एक ओपनिंग नीचे की तरफ होगी जो वजाइना की तरफ खुलेगा. वजाइना बाहर की तरफ है, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस. ओएस यानी कि ओपनिंग. इट इज अ काइंड ऑफ वेरी टिपिकल मेडिकल टर्म
तो इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर OS इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ ओपनिंग. सो एक्सटर्नल OS कहाँ पर प्रेजेंट है? वजाइना की तरफ. और इंटरनल OS कहाँ पर प्रेजेंट है? अंदर की तरफ, बॉडी की तरफ. सो इंटरनल OS इज प्रेजेंट towards the body. Body means body of uterus. And external OS is present where? Towards the vagina. Let's see what is mentioned ahead. Internally, the uterine wall can be distinguished into 3 layers. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ये जो यूटरस है, ये यूटरस को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है. आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज पेरीमेट्रियम. मिडल थिक लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम, which is made up of thick layer of smooth muscles. Okay, vigorous contractions of these muscles cause labor. Labor यानी कि giving birth to the child. मतलब जब पेन होता है, when actual डिलीवरी होने वाली है चाइल्ड की, so the contraction which the mother feels where she has to apply force to push the baby outwards. Okay, तो वो contraction करने में कौन सा part help करता है? Myometrium, the middle part of the uterus, the thick muscle. Okay, it helps in contractions and it helps in pushing the child outside the body. That is, it helps in parturition. Parturition means what? Delivering the child. Okay, the innermost layer called endometrium or mucosal membrane is made up of stratified epithelium. ध्यान से सुनो क्या बोला गया है यहाँ पर. यूटरस 3 लेयर्स से बना है. दिस यूटरस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. आउटर लेयर इज वेरी थिन, इट इज नोन एज पेरीमेट्रियम. पेरी मीन्स अपर लेयर. ओके, वेरी थिन लेयर. उसके नीचे है मिडल लेयर एंड दैट मिडल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम. इट इज वेरी थिक. इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द चाइल्ड. No, it doesn't provide nourishment. It helps in parturition. Outer layer is very thin, perimetrium. Middle layer is myometrium, which helps what and when? It helps in contraction when delivering the child. जब बच्चे को बाहर बॉडी से पुश करना है, डिलीवर करना है, उस टाइम पे कौन से मसल से प्रेशर आता है? मायोमेट्रियम से. मायोमेट्रियम कौन से मसल से बना है? स्मूथ मसल से. प्लीज रिमेंबर द डिस्टिंक्शन. मायोमेट्रियम हेल्प्स इन पार्चुरेशन, बच्चे को डिलीवर करने में हेल्प करता है, और वो स्मूथ मसल से बना है. एंड द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज द एंडोमेट्रियम. ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज अ म्यूकोजल मेम्ब्रेन, विच इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. आई होप आपने 11th स्टैंडर्ड में टाइप्स ऑफ सेल्स या टाइप्स ऑफ टिश्यू का जब चैप्टर पढ़ा था तो कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ऐसे बहुत सारे एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था, मतलब लेयर्स के बारे में पढ़ा था, और हर एक लेयर का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यूटेरस में कितनी वॉल्स होती हैं या कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स. आउटर लेयर इज पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर इज मायोमेट्रियम which is made up of smooth muscles. Okay, MM ऐसा आप याद रख सकते हैं, मायोमेट्रियम का M और स्मूथ का M. So myometrium, smooth muscles, and endometrium is made up of stratified epithelium. Okay, this endometrium plays a very important role in maintaining the menstrual cycle. Okay, अगर fertilization हो गया, successful fertilization अगर यहाँ पर हो गया, एम्प्यूला में sperm और ovum का fusion हो गया, तो ये एंडोमेट्रियम क्या करेगा? ये जो इनर मोस्ट लेयर है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. मतलब यहाँ पे जो जाइगोट बना है वो जाइगोट फंडस के पास आया, मतलब यूटेरस के पास आया, एम्ब्रियो बना. अब उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन सी लेयर से मिल रहा है? एंडोमेट्रियम से मिल रहा है. और इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब टाइम से अगर स्पर्म यहाँ पर नहीं पहुँच पाया या सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं हुआ, सो ओवम तो वेस्ट हो गया या ओवम रिलीज हो जाएगा. तो उस टाइम पे ओवम रिलीज होने से पहले आपका एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है वो एंडोमेट्रियम लेयर शेड हो जाता है. मतलब पहले नहीं, पहले ओवम रिलीज हो जाता है, और जैसे ओवम रिलीज होता है तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रिगर हो जाता है. मतलब पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लड आता है, जो ब्लीडिंग होती है, वो एक्चुअली कौन सी लेयर निकल रही होती है? यूटेरस की एंडोमेट्रियम लेयर. क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर का काम ही है फीटस को नरिशमेंट देना. पर अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है, जाइगोट ही नहीं बना है, तो वो एंडोमेट्रियम अंदर रह के क्या करेगी? द सेल्स विल गेट डीजेनरेटेड. ओके, सो वो डीजेनरेटेड सेल्स मेंस्ट्रुअल ब्लड बन के बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं. मेक श्योर यू नोट दिस. ओके, द थिकनेस ऑफ दिस लेयर रेगुलरली अंडरगोज चेंजेस.
एंडोमेट्रियम लेयर का थिकनेस चेंज होते रहता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड. इन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. आई होप कि अब आपको समझ गया कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एंडोमेट्रियम लेयर बाहर आने के टाइम पर ब्लीडिंग होती है. Why? Because it is richly supplied with what? It is richly supplied with blood vessels and uterine glands. These provide nourishment to the developing fetus. So I hope that I have clarified myself. Okay. Let's move ahead. Let us just have a look at the box that is given in your textbook, and that says something about uterus cancer. Okay, let's try to understand that what is it. Let us read together what is uterus cancer. Most of the uterine cancers begin in the layer of cells that form the lining of endometrium of uterus. Again, the innermost layer. सबसे ज़्यादा important endometrium layer का है. फीटस को नरिशमेंट कौन दे रहा है? एंडोमेट्रियम. मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन मेंटेन कर रहा है? एंडोमेट्रियम. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर उसी सेल्स में कुछ डिफेक्ट हो जाए, so the woman might suffer from uterus cancer. What are the symptoms of this uterus cancer? क्या हो सकता है सबसे कॉमन सिम्टम? ऑब्वियसली मैं बार बार बोल रही हूँ, इट हेल्प्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो एबनॉर्मल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स. आपके पीरियड्स के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग हो जाए या लेवल अप डाउन हो जाए, 4th डे पे सडनली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, देयर आर एनोनिमस and many symptoms for uterus cancer. You must get it diagnosed properly. So abnormal bleeding between periods, vaginal bleeding after menopause, this is one of the significant symptom. Menopause यानी कि जब कोई लेडी 45 या 50 years क्रॉस कर चुकी है, उसके पीरियड स्टॉप हो गए हैं, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम शी अगेन स्टार्ट्स ब्लीडिंग. सो दैट डज नॉट मीन कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस आ गया है या उनका पीरियड वापस स्टार्ट हो गया है. इट सिंपली मीन्स दैट इट इज अ सिम्टम ऑफ यूटेरस कैंसर. आफ्टर मेनोपॉज अ वुमन नेवर ब्लीड्स, ओके, और शुड नॉट ब्लीड इन नॉर्मल कंडीशन. सो वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, एन एबनॉर्मल वाटरी ब्लड टिंज्ड डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना. बॉडी में से कोई एबनॉर्मल सी चीज़ जब एक्सक्रीट होने लग जाए, ओके, एक्सेप्ट यूरिन एंड एक्सेप्ट मेंस्ट्रुअल ब्लड. मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लीडिंग होगी और यूरिन का कलर और उसका सारा कंसिस्टेंसी आपको पता है. लेकिन अगर नॉर्मल फ्लूइड की जगह अगर कोई अलग चीज़ बाहर निकले बॉडी के, तो यू मस्ट ऑब्जर्व इट प्रॉपरली कि ये मेरा सिर्फ यूरिन है या ये मेरा मेंस्ट्रुअल ब्लड है या ये क्या है, मेरी बॉडी से क्या निकल रहा है बाहर. ओके, सो अगर वाटरी सब्सटेंस बाहर आता है, एक्सक्रीट होता है, इट मीन्स इट इज़ अ सिम्टम ऑफ यूटेरस कैंसर. pelvic pain, okay, there will be extreme pain in your pelvic region. Detection, it is diagnosed with pap smear test, biopsy and ultrasound. These are some of the techniques which help us to diagnose the presence or absence of uterus cancer, and the treatments are chemotherapy, radiation, surgical removal of uterus, etc., etc. You need to remember this term, hysterectomy. Hysterectomy means when you remove the uterus, okay, and removing the uterus means the woman can no longer conceive, क्योंकि एम्ब्रियो का साइट ही चला जाएगा डेवलपमेंट. एम्ब्रियो कहाँ रहेगा? जब कोख ही निकाल दी जाएगी तो एम्ब्रियो कहाँ पर नरिश होगा. सो आफ्टर हिस्टेरेक्टमी द वुमन कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वजाइना. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ इट. ओके, इट इज अ ट्यूब्यूलर फीमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन. क्या बोला जा रहा है? इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एकदम लोअर टेपर्ड एंड है. फीमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन, कॉप्युलेटरी मीन्स सेक्सुअल ऑर्गन, इन विच द पीनस विल एंटर. इट इज 7 to 9 centimeter in length. It lies between the cervix and the vestibule. What are vestibules? हम जस्ट अभी देखेंगे. Vestibules basically means आउटर पार्ट ऑफ द वजाइना. वजाइना के जो अपर लेयर्स होते हैं या उसका जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि एक्सटर्नल जीनिटेलिया और वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वेस्टिबुलर ऑर्गन्स के बारे में. सो वेस्टिब्यूल इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन. ओके, वजाइना इज एन इंटरनल ऑर्गन. अभी तक हमने जो भी पढ़ा, ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वजाइना, ये सब किधर का पार्ट है? इंटरनल ऑर्गन. ओके,
सो इट इज 7 to 9 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है वजाइना? सर्विक्स के नीचे और वेस्टिब्यूल के ऊपर, मतलब बीच में. द वजाइनल वॉल हैज एन इनर म्यूकोजल लाइनिंग. वजाइना के अंदर कौन से सेल्स की लाइनिंग होती है? म्यूकोजल सेल्स की. ओके, ताकि स्लाइमीनेस बना रहे, चिपचिपाहट बनी रहे. ओके, द मिडल मस्क्यूलर लेयर एंड एन आउटर एडवेंटिशियस लेयर. The mucosal epithelium is stratified and non-keratinized. This is important. वजाइना की इनर लेयर जिनके ऊपर म्यूकोजल सेल्स होते हैं, जहाँ जहाँ पर वजाइना में म्यूकोजल सेल्स होंगे, जहाँ जहाँ पर म्यूकस होगा, जहाँ जहाँ पर स्टिकी सब्सटेंस होगा, वहाँ रीजन कैसा होगा? It will be stratified and it will be non-keratinized and it stores what? ग्लाइकोजन. स्ट्रैटिफाइड यानी कि स्ट्रैटिफाइड सेल्स होंगे वहां पर, एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड मीन्स देयर विल बी नो हेयर इनसाइड द वजाइना. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. वजाइना के अंदर जहां जहां पर म्यूकोसल सेल्स होंगे वहां वहां पर केराटिन नहीं होगा. केराटिन एज इन हेयर सेल्स, सेल्स विच प्रोड्यूस हेयर. एंड इट स्टोर्स व्हाट? इट स्टोर्स ग्लाइकोजन विच इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड. These are no glands, sorry, there are no glands, but the cervical secretion of mucus is received in the vagina. So क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि वजाइना में स्पेसिफिकली कोई ग्लैंड नहीं है. जैसे अपने माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा रिलीज करता है जिसके वजह से माउथ हमेशा गीला रहता है, तो वैसा वजाइना में कुछ नहीं है. वजाइना में कोई ग्लैंड नहीं है कि वहां पर वजाइनल ग्लैंड के वजह से म्यूकस आ रहा हो. ये सारा का सारा सेक्रीशन कहाँ से आता है? वजाइना के अपर पार्ट यानी कि सर्विक्स से. कहाँ से आता है? सर्विक्स से. सर्वाइकल सेक्रीशन. द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इनटू द वेस्टिब्यूल इज कॉल्ड वजाइनल ऑरिफाइस. वजाइना इज एन इंटरनल ऑर्गन और उसके ओपनिंग को, मतलब बाहर के रीजन को, वेस्टिब्यूल इज एन एक्सटर्नल जेनिटिलिया. सो वजाइना के बाहर के पार्ट को जहां पर वजाइना ओपन हो रहा है एंड इट इज गेटिंग एक्सपोज्ड टू द आउटर रीजन, दैट एक्सपोजिंग पार्ट इज नोन एज वजाइनल ऑरिफाइस. क्या बोलते हैं हम उसको? वजाइनल ऑरिफाइस. दिस ओपनिंग इज कवर्ड पार्शियली बाय अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन. अब बहुत सारे बच्चों ने ये वर्ड सुना होगा, हाइमेन. व्हाट इज हाइमेन? हाइमेन इज नथिंग बट, एज इट इज सेड, दैट इट इज अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. मतलब एक थिक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बीच में होती है. ओके, एंड दिस हाइमेन इज ऑल्सो नोन एज एन इंडिकेशन टू जज द वर्जिनिटी ऑफ द फीमेल. मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पीनस एंटर्स इनटू द वजाइना. ओके, एंड व्हेन पीनस एंटर्स इनटू द वजाइना, तो वजाइना के अंदर अगर उसको जाना है तो पहले वो एक्सटर्नल ऑर्गन से होते हुए अंदर जाएगा और वजाइना के अंदर इंसर्ट करने से पहले वो उस हाइमन को ब्रेक कर देगा, बिकॉज दैट हाइमन इट प्रोटेक्ट्स आउटर एजेंट्स टू एंटर इनटू द वजाइना. ओके, बट दिस इज अ मिसकंसेप्ट. ये एक गलत फहमी है कि सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हाइमन ब्रेक हो सकता है. नो, आप जब एथलेटिक्स करते हो, साइकिलिंग करते हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो रिलेटेड टू योर स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलम, डांसिंग, डूइंग योगा, एनीथिंग, एट दैट टाइम ऑल्सो आपके इस मसल पर इतना प्रेशर अप्लाई हो सकता है कि वो ब्रेक हो जाए, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज मेड अप ऑफ वॉट? इट इज मेड अप ऑफ वेरी सेंसिटिव सेल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन. हाइमन एक छोटे से म्यूकस सेल्स से बना हुआ है. ओके, मतलब बहुत सारे म्यूकस सेल्स, स्टिकी सेल्स टुगेदर कंबाइन होकर एक छोटा सा लेयर बना देते हैं. सो दैट लेयर कैन बी इजीली ब्रोकन. ओके, ऑल राइट. द वजाइना एक्ट एज अ पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो एज वेल एज बर्थ कैनाल ड्यूरिंग पार्चुरेशन. तो यहाँ पर हमको वजाइना का सिग्निफिकेंस बताया गया है कि वजाइना कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस वजाइना में एंटर करेगा. दूसरी बात, वजाइना से ही ब्लड फ्लो होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. और तीसरी बात, बेबी फीटस जब बाहर आता है, डिलीवरी होती है, तो वो कहाँ से डिलीवर होता है? अगेन थ्रू वजाइना. सो वजाइना हैज 3 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेस. ऑल राइट, सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड all the things that were discussed in this lecture. Okay,
Alright, so I hope that today's lecture was very much helpful to you. We covered the internal organs of female reproductive system, that is oviduct, uterus and vagina. We will complete the remaining part of the female reproductive system in our next lecture. अगर आज के लेक्चर में या कोई प्रीवियस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है, then please feel free to ask your doubts in our comment section. Do not forget to practice the diagrams and to read the textbook twice. 2 बार टेक्स्ट बुक पढ़ना प्लीज, उसके बाद आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, बिकॉज इट विल हेल्प यू. ओके, बिकॉज आई नो द थिंग, आई कैन आंसर यू immediately, but even you have to strengthen your concepts. So please read the textbook, do not forget to read it. And if you have liked our video, then do not forget to click on the like button. Please share it with as many people as possible, and please click on the subscribe button if you haven't subscribed to our channel yet. Thank you, stay tuned, see you soon.